کے لیے. یہ سارا وہاں پینما کے اندر وہاں انہوں نے ٹیکس ہیون بنایا ہوا ہے. تو ادھر یہ دنیا کی ایلیٹ, یہ پاکستان کی نہیں ہے, یہ دنیا کی ایلیٹ وہ پیسے اپنے جمع کرواتی ہے. اب اس میں بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں, اور میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آسٹریلیا کے اندر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے جدھر ان کے نام آئے ہیں. ہانگ کانگ میں شروع ہو گئی ہے, جن لوگوں کے ہانگ کانگ کی ایلیٹ کے نام آئے ہیں. نیوزی لینڈ میں ٹیکس ایجنسیز نے شروع کر دیا ہے. فرینچ جو پریزیڈنٹ ہے اس نے آرڈر کر دیا انویسٹیگیشن جو ادھر کے فرانس کے نام آئے ہیں. اور جو آئس لینڈ ہے اس کا جو ابھی وزیر اعظم کا نام آ رہا ہے, وہاں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ریزگنیشن, اور وہاں ری الیکشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ کہیں گے نا کہ جی فلانی سازش ہے تو سیاسی ہے, یہ کوئی سازش نہیں ہے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں غریب قوموں پہ, وہاں کا پیسہ چوری کر کے باہر آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے, اللہ کی طرف سے پکڑے گئے ہیں. یہ میں کب سے اب تقریباً 20 سال ہو گئے میں یہ شور مچا رہا تھا کہ جو پیسہ چوری کر کے ملک کا باہر لیا جاتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ اللہ حق ہے, اس نے سب کے سامنے اصلیت لے آیا. آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک فرم ہے, اور جو اثاثے ہیں ان کے وہ اور فرمز کے نیچے ہیں. یہ ایک فرم, ایک لا فرم, اس کے صرف انکشافات ہوئے ہیں. تو اس کے اندر اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میاں نواز شریف کے اوپر جو الزامات آ رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ چیزیں کر دی. اپنا انہوں نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں, میں تو بچوں سے قرضے لے کے گزارے کر رہا ہوں. یہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میں اپنے بچے وہاں کماتے ہیں پیسے اور وہ مجھے بیچتے ہیں, میں تو مقروض ہوں, میری تو گاڑی بھی میرے نام کے نہیں ہے, گھر بھی میری والدہ کے نام ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے پتہ کیا چلا ہے کہ میاں صاحب نے اپنے بچوں کے نام تو چیزیں کر دی, لیکن بچوں بیچاروں وہ اب ان بیچاروں کو جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں بتانے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے اب ذرا پہلے جھوٹ سنیں کہ مریم بی بی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں, ان کی ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہ میرے بھائیوں کے نہ میرے خاندان کسی کی پراپرٹی باہر نہیں پڑی یا پیسے باہر نہیں پڑے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم, میں حالانکہ اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ ان کے میاں صاحب کے بیٹوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے اور بینک اکاؤنٹس باہر پڑے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم حسین شریف آتے ٹی وی پر کہتے ہیں کہ میری یہ کمپنی ہے اور الحمدللہ میرے پاس وہ بھی ہے, وہ فلیٹ بھی ہے اور مے فیئر بھی ہے. وہ سارا ٹی وی پہ آگے کہہ دیتے ہیں. ہم بڑے حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہوا ہے. اب رات جب ہم انڈین ایکسپریس کا مضمون پڑھتے ہیں تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا. انڈین ایکسپریس کے پاس انفارمیشن آتا ہے 3 آف شور کمپنیز کا, وہ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کمپنیز آپ کے نام پہ ہیں یا نہیں. حسین شریف کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو آنے لگی ہے اخباروں میں, تو وہ پہلے ٹی وی پہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے یہ کمپنیز میرے نام پہ, اور میں نے الحمدللہ بڑی محنت سے باہر سے سارے قرضے لے کے, اور اربوں سے, پتہ نہیں کون یہ امیر دوست ہیں جو اربوں روپے کے قرضے دے رہے, قرضے لے کے, اور میں اربوں پتی بن گیا ہوں الحمدللہ. اب ساتھ مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ آ جاتی کہ ہماری تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 بولنے پڑتے ہیں. اب وہ ہوا یہ کہ مریم بی بی تو 2 سال پہلے سٹیٹمنٹ دے بیٹھی تھی کہ ہمارا کچھ نہیں ہے. جب ان کو انڈین ایکسپریس کا پتا چلا تو انہوں نے حسین شریف نے پہلے سے کہہ دیا کہ ہاں جی ہماری ہیں, اور سٹیج پروگرام کروا دیا جدھر کہا کہ ہاں جی میں نے بڑی محنت سے یہ پیسہ کمایا. اب اس میں جتنی آپ انویسٹیگیشن کریں گے آپ کو پتا چلے گا کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں, تضاد آ رہا ہے, جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. آپ جتنا دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ انہوں نے کہا کہ جی 2001 کے بعد جب ہم انگلینڈ گئے تب ہم نے پیسہ بنایا. جو کمپنیز کے اب جو نام آ رہے ہیں وہ 93 اور 94 میں کمپنیز لی ہوئی ہیں. پھر وہی مے فیئر کی اپارٹمنٹ التوفیق کا کیس ہوا تھا, جو حدیبہ پیپر مل کا کیس ہے, وہ لندن میں ایک
हाई कोर्ट का जज इनके मेफेयर के फ्लैट, इन्होंने कर्जा देना होता है अल तौफीक को, वो इनके फ्लैट अटैच कर देता है मेफेयर के, जबकि एकदम फिर मियां साहब को कोई पता नहीं कोई दोस्त निकला जिसने को 3 अरब रुपया दे दिया इनको, $30 मिलियन, वो जो कर्जा जो देना था इन्होंने अल तौफीक बैंक को। ये 98 की बात है। उसके बाद फिर एक और इनकी प्रॉपर्टी की एक डिटेल्स आती हैं मेफेयर की कि ये इनके नाम की हैं, और हुसैन शरीफ कहते हैं कि ये सारा कुछ बाद में मैंने जाके मेरे दोस्तों ने कर्जा दी और ये मैंने सारी प्रॉपर्टी बनाई। इसमें सब में कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन होनी है क्योंकि ये फंस गए हैं, इनसे समझाया ही नहीं जा रहा कि ये पैसा किधर से आया। देखें, प्रॉपर्टी अगर मैंने बनानी है तो मुझे पहले पैसा चाहिए, पैसा होगा तो मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा ना। असल बात ये वो पैसा गया कैसे इंग्लैंड, और उसमें आपके पास इसहाक डार का एफिडेविट है। इसहाक डार एफिडेविट में कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नाम भी देते हैं उन लोगों के। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती क्योंकि मियां साहब को जनरल मुशर्रफ NRO दे देते हैं और सऊदी अरेबिया जाने का, वो इन्वेस्टिगेशन वहां रुक जाती है। जो इसहाक डार का एफिडेविट है, अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहां से पैसा गया कैसे, और फिर उस पैसे से ये प्रॉपर्टीज ली कैसी गई। और वो जो प्रॉपर्टीज हैं अब, वो आप याद रखें कि अभी तक ये सिर्फ एक लॉ फर्म, एक कंपनी है जिसके नीचे ये प्रॉपर्टीज हैं, बाकी इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसका भी अभी इंकशाफ नहीं हुआ। मैं आज डिमांड करता हूं, अगर फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अगर न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, आइसलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही। नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि इनके बच्चों के पास ये पैसा किधर से आया। मनी ट्रेल होती है, बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहां से पैसा बाहर गया, क्या उस पैसे को आपने डिक्लेयर किया, क्या उस पैसे के ऊपर आपने टैक्स दिया, क्या आपने अपने असासे डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन को। आपको बताना पड़ेगा मियां साहब, अगर आप इस मुल्क में लोगों से चाहते हैं कि लोगों की करप्शन खत्म करें, जो ये नैब कह रही है कि दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है, ये मौजूदा नैब की स्टेटमेंट है, दिन की करप्शन 12 अरब रुपया है। ये करप्शन कब रुके, कैसे रुक सकती है, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ना अपने असासे डिक्लेयर करता है, ना अपने बच्चों के असासे डिक्लेयर करता है, ना इलेक्शन कमीशन को सही तरह बताता है कि उसके और उसके बच्चों के असासे कितने हैं। मरियम बीबी के हस्बैंड है MNA, उन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किए असासे मरियम के, जो आ गया इसमें कि 2 ऑफशोर कंपनीज के वो बेनिफिशियरी ओनर है, वो उन्होंने क्यों नहीं डिक्लेयर किया। सफदर भी फंसते हैं, नवाज शरीफ भी फंसते हैं, वो बता ही नहीं सकते कि इनके बच्चों के पास कैपिटल किधर से गया। इसलिए ये अब पाकिस्तान के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। ये वो वक्त है कि पाकिस्तान की कौम डिमांड करे कि जब जिस मुल्क के सरबरा अपना पैसा इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाते हैं, वो कैसे लोगों को कह सकते हैं कि बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेके और इन्वेस्टमेंट करो। जिस मुल्क के सरबरा खुद अपने एसेट्स छुपाते हैं, वो दूसरों के एसेट्स कैसे कह सकते हैं डिक्लेयर करो। सिर्फ पिछले 3 साल में दुबई में 750 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने ली है। ये कौन लोग हैं? ये जो 7.5 अरब डॉलर इस मुल्क से गया सिर्फ दुबई, जो बाकी दुनिया में गया वो नहीं हमें पता। ये जब पैसा मुल्क से बाहर जाता है, हमारा जो डेफिसिट होता है वो हम कैसे करते हैं, हम कर्जे लेते हैं। ये मुल्क मकरूज होता जा रहा है। यही दोनों के दौर में, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दौर में 8.5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया था, आज 1,20,000 रुपया कर्जा मुल्क को मकरूज किए जा रहे हैं। यहां से पैसा हुंडी के जरिए बाहर भिजवा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में खुद मुलव्वस हैं, बाहर इनके बच्चों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, डिक्लेयर ये नहीं कर रहे, ये कानून के ऊपर है। कैसे ये लोगों को का एहतसाब कर सकते हैं? कैसे ये लोगों को कह सकते हैं कि अपने असासे डिक्लेयर करो? कैसे लोगों को कह सकते हैं कि इलेक्शन के कमीशन के सामने अपने असासे से डिक्लेयर करो, जब इन्होंने खुद नहीं किए? आज हम डिमांड करते हैं नैब को कि अगर नैब इस मुल्क के अंदर, अगर नैब अपनी साख रखना चाहती है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना चाहती है,
फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करें जो बाकी दुनिया के मुल्कों में हो चुकी है। जिन लोगों के नाम आए वो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। नैब का अब काम है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू के नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर पूरी, और ये फिर से मैं कहता हूं ये सिर्फ एक लॉ फर्म के नीचे है। ये बाकी इनकी प्रॉपर्टीज वो जो और कंपनियों के नीचे, उसके ऊपर अभी नहीं कोई इंकशाफ हुआ है। इसी जो अभी तक इंकशाफ हुआ है, नैब का अब काम है कि आगे चले। अगर नैब ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, इसका मतलब नैब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि आम छोटे छोटे लोगों को ना पकड़े प्ली बार्गेन के लिए, गरीब लोगों को पकड़ रहे हैं, कोई आम पकड़, पटवारी को पकड़ लिया और उससे भी प्ली बार्गेन करके खुद भी पैसा बना रहे हैं। जो अगर आपने इस मुल्क में करप्शन खत्म करनी है, सबसे पहले बड़ों को पकड़े। इन जितने भी ऊपर हमारे साहिब इक़्तिदार हैं जो कि इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं, ये टाइम है पाकिस्तान में, जो मैं 20 साल से कह रहा था, ये टाइम है इनका एहतसाब करने का। उनके पैसे पर आप अदालत में जाएं, पाकिस्तान में जाएं, यूरोप की अदालत में जाएं। देखिए, मैं नून लीग के वो लोग जिनको पाकिस्तान की फिक्र है, मैं नून लीग के उन लोगों को जिनको पाकिस्तान की फिक्र है, उनको अपील करता हूं आज। देखें, ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये इमरान खान का सवाल नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। अगर इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर जाता जाएगा जिस रेट पे जा रहा है, और कर्जे पे कर्जे लेते जाएंगे, मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ाते जाएंगे, आपके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? कितने आपके बच्चे जाके बाहर रह सकेंगे जिस तरह हुसैन शरीफ और हसन शरीफ रह रहे हैं? कितने लोग जाके, आपने तो रहना यहाँ है, मुल्क का हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। हाँ, एक ना हमारे पास पैसा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना पैसा है अस्पतालों के लिए, ना हमारा पैसा है इंसाफ लोगों को देने के लिए, क्योंकि सारा जो मुल्क में ना टैक्स इकट्ठा होता है, क्योंकि टैक्स की चोरी है और करप्शन का पैसा जा रहा है। जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बड़े बड़े मेट्रो के प्रोजेक्ट्स और ये ऑरेंज ट्रेन बन रही है, पता चल रहा है इनमें से कितना पैसा बाहर जा रहा है। ये जो बाहर ऑफशोर कंपनी में पैसा जा रहा है, वो ये बड़े प्रोजेक्ट्स में से तो पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। अगर एक मिनट, अगर हमारे नून लीग के जो वो लोग जिनको फिक्र है पाकिस्तान की, क्या आपका नहीं काम कि नवाज शरीफ से पूछें कि ये कैसे आपके बच्चों के पास अरबों रुपया आया है? मैं आज अपनी तरफ से कहता हूं, मैं तहरीक इंसाफ का चेयरमैन हूं, मैंने अपने सारे असासे डिक्लेयर किए हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर है, सारे मेरे नाम पे हैं, सारे पाकिस्तान में हैं। मेरी पार्टी में से कोई भी मेरे से पूछ सकता है, कोई मेरा पार्टी का मेंबर कारकुन पूछ सकता है कि इमरान खान बताएं आपके पैसे कितने, आपके सासे कितने। क्या नून लीग वाले नहीं पूछ सकते? क्या ये कोई खुदा है? क्या ये कोई मुगल आजम है कि आप पूछ नहीं सकते इनसे कि आपके बच्चों के पैसे बाहर कैसे पड़े हैं? ये जो परवेज रशीद जैसे लोग हैं, दरबारी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। एक मिनट सुनो, इनको शर्म आनी चाहिए कि बजाय उससे पूछे नवाज शरीफ से कि पैसा किधर से आया है, आप पूछ रहे हैं, ये लोगों के आंखों के अंदर धूल फेंक रहे हैं। जी साहब, आज सुबह जो हुकूमती तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें आपके तमाम इल्जामात को उन्होंने मुस्तरद किया है, और बल्कि यहाँ तक भी कहा है जिस जगह पे आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये भी चैलेंज है बताएं। तो ये जो है, ये महज एक नोक झोंक है दोनों के दरमियान, या कोई छेड़छाड़ का सिलसिला है? एक मिनट, पहले तो ये इल्जाम इमरान खान ने नहीं लगाए, ये इंटरनेशनल सारी दुनिया में इंकशाफात हुए हैं जिसमें मियां साहब फंस गए हैं। ये इमरान खान ने नहीं इल्जाम लगाए, ये उनसे पूछना चाहिए जो लॉ फर्म के जरिए इन्होंने बाहर पैसे पनामा पे रखवाए हुए हैं, उनसे पूछे। मैंने तो नहीं इल्जाम लगाया, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूं कि अगर ये कहते हैं कि मेरा पैसा ठीक नहीं, या मैंने कोई 2 नंबरी से ये जगह ली है, मुझे पकड़ते क्यों नहीं है? मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इल्जामात नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जेलों में डलवाऊंगा। मैं एक मिनट सुने, मैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा उसको मैं जेल में डालूंगा। मैं खड़ा हूं आपके सामने, बताएं कि अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई गलत किया तो मुझे पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते मुझे? इमरान खान साहब, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आपने स्टार्ट में जिन लोगों का नाम लिया, वहाँ किसी न किसी हद तक इमरान खान चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रिपोर्ट को लीक किया गया, जिस तरीके से इस सारे सिलसिले को हैंडल किया गया, क्योंकि पिछले 4 दिन से ये बातें इतनी चल रही थी और बातें इतनी गर्म थी कि किसी ने भी आके इस पे कोई बात करने की ज़हमत ना की और इस पे कुछ भी आगे बात ना कर सके।
मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सब एक्स क्रिकेटर से भी और सब लोगों से कि मेरी जो सर्विसेज पाकिस्तान के लिए हैं और या मेरी एज अ कोच एज अ प्लेयर उसको ना भुलाया जाए, क्योंकि मैंने अपने बड़ी ईमानदारी से 19 महीने ये काम किया है, पहले भी मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो उसको हरगिज़ ना भुलाया जाए। और कोशिश करूँगा आइंदा भी कि पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। मेरी रिकमेंडेशंस आप सबको मालूम है मैंने दी हैं, आपको अब तो वो एयर हो गई हैं लीक होने के बाद, सबको मालूम है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि उसमें रिकमेंडेशंस में मैंने क्या क्या लिखा था। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आने वाले कोचेज़ जो पाकिस्तान को आइंदा कोच करेंगे उनको और आसानियाँ होंगी उससे, अगर उन तजावीज़ पे उन पे अमल किया गया। बड़े हैवी दिल के साथ छोड़ रहा हूँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि तकलीफ़ ज़रूर हुई है मुझे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की डीलिंग होगी। लेकिन क्या करें, शायद हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड के हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना था। लेकिन उससे बेहतर है कि बंदा खुद ही इज़्ज़त से छोड़ जाए। मैंने अपनी सारी बातें 2-3 पिछले टीवी चैनल्स पर भी बैठ के भी की हैं और उसमें मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और मैं और अपने उन प्लेयर से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो टीवी पे बैठते हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कि इस क्रिकेट का हमेशा ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ क्रिकेट बोर्ड के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन क्रिकेटर्स का कि पिछले जो 19 महीने में जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने अपनी पूरे दिल से उनके साथ काम किया, कोशिश की कि उनको बेहतर क्रिकेटर बनाऊं, उनके साथ मिल के चलूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हालात इस वक्त बन गए हैं, इसमें मुल्क की बदनामी, इसमें क्रिकेट बोर्ड की बदनामी। क्रिकेट बोर्ड मेरा घर है, अगर इसकी बदनामी होगी या मेरे घर की बदनामी होगी तो उससे बेहतर है कि हम इससे पीछे हट जाएं और इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें इन चीज़ों को। मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, ग़ालिबन 50-60 लाख रुपए जितना भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड को कि वो 50-60 लाख रुपया जो भी मेरा बचता है वो अब हमारी जो फर्स्ट क्लास इस सीज़न या अगला आने वाला सीज़न उसके ऊपर खर्च करे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब ऊपर क्रिकेटर या ऊपर बच्चा आता है तो वो उतना तैयार नहीं होता जो कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए। आई एम फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें पैसे नहीं डाले जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या 8 साल बाद यहाँ कोई और खड़ा होगा और वो यही रो रहा होगा। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को इस पे बहुत सोचना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की क्रिकेट है बहुत आगे जा चुकी है, हम बहुत पीछे हैं। तो आई थिंक इन पे मुझे उम्मीद है कि क्रिकेट बोर्ड के करता धरता गौर करेंगे ताकि हम 2 साल या 4 साल के बाद यहाँ खड़े होकर इस तरह का रोना दोबारा ना रो सकें। तो वो जो मेरे जो जैसे मैंने कहा ना कि मेरे जो भी बकिया है या मेरे जो फाइनेंसेस हैं, मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको फर्स्ट क्लास में यूज़ किया जाए। आप पे दबाव था कोई आज की मीटिंग में? आपकी मीटिंग पे दबाव था कोई आप पे? मेरे पे कोई दबाव नहीं था जी, मेरे पे दबाव होता तो मैं इस तरह की सजेशन या इस तरह की बातें ना कर रहा होता। मैं तो जब मैं आने वाला था, मैंने तकरीबन कोई 5 बजे आना था, ग़ालिबन 5 बजे आना था, तो मुझे अचानक फ़ोन आया इनका कि आप आके बात करें। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस पर कि इन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, चाहे देर से दी, चलो देर आए दुरुस्त आए। दबाव नहीं है, दबाव तो ये है कि आप 5 दिन से हुकूमती सतह पर अहदेदारों से मिलना चाह रहे थे, मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, आपने शिकायत की कि वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी, तो क्या मुलाकात ना होने की वजह से आप फिर साल रोककर, क्योंकि सुनवाई तो यहाँ आपकी नहीं हुई है, वज़ीर आज़म भी नहीं मिले, तो इस वजह से आप रिज़ाइन दे रहे? हालांकि रिज़ाइन लेना होता तो आप फंस दे थे। देखिए, मेरा मकसद चीज़ों को ठीक करना था, कोशिश करना थी कि इनके जो मेरी रिकमेंडेशंस हैं उस पर अमल किया जाए। 2015 में भी मैंने दी थी, उस पर भी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने शोर किया था। और अब रिज़ाइन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें अब हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी होना शुरू हो गई है। ये बहुत ज़्यादा इसको उछाला जा रहा है, उसको मीडिया में ज़्यादा इसकी बातें चर्चा हो रही है। तो आई थिंक
इट्स अबाउट टाइम कि इसको बंद किया जाए और आगे की तरफ देखा जाए। समझते हैं कि किसी सिस्टम चल रहा है क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि आपने रिजाइन किया है, आपको लग रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस पे किया है या जो सिस्टम से तंग आके किया है? और दूसरा क्वेश्चन, इस सिस्टम से हम क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं जो चल रहा है? देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि मैंने, अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैंने ये T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप की वर्ल्ड कप की हार की वजह से मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को आगे चलना चाहिए। जो मेरी रिकमेंडेशंस थी उस पर अमल नहीं किया गया या उसको सुना नहीं गया। मेरे मेजर रीज़न मेरा वो है कि आगे मूव करने के लिए जब तक हम जो रिकमेंडेशंस कोच देता है या बड़े देते हैं, आई थिंक उन पे अमल होना चाहिए। 2011 में भी आपने रिज़ाइन किया था, फिर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्या ये ऐसे क्यों क्रिएट किया जाता है ऐसा? देखिए, 2011 में मैंने जो रिज़ाइन किया था वो पर्सनल वजह से मैंने रिज़ाइन किया था। किसी के साथ मेरी कोई उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था या मुझे क्रिकेट बोर्ड से कोई शिकवा नहीं था। आपको याद होगा कि हेड कोच वकार यूनुस ने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया है। अगर ये तो आने लगी है अखबारों में, तो वो पहले ही टीवी पे आके बता देते हैं कि जी देखें, मैंने ये कंपनीज मेरे नाम पे और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से बाहर से सारे कर्जे लेके और अरबों से, पता नहीं कौन ये अमीर दोस्त हैं जो अरबों रुपए के कर्जे दे रहे, कर्जे लेके और मैं अरबोपति बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब साथ मरियम बीबी की स्टेटमेंट आ जाती कि हमारी तो कोई है ही नहीं। ये समझने के लिए आपको क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए 100 बोलने पड़ते हैं। अब वो हुआ ये कि मरियम बीबी तो 2 साल पहले स्टेटमेंट दे बैठी थी कि हमारा कुछ नहीं है। जब इनको इंडियन एक्सप्रेस का पता चला तो इन्होंने हुसैन शरीफ ने पहले से कह दिया कि हाँ जी हमारी है, और स्टेज प्रोग्राम करवा दिया जिधर कहा कि हाँ जी मैंने बड़ी मेहनत से ये पैसा कमाया है। अब इसमें जितनी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको पता चलेगा कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं, तजाद आ रहा है, झूठ पकड़ा जा रहा है। आप जितना देखेंगे तो पता चलेगा कि ये इन्होंने कहा कि जी 2001 के बाद जब हम इंग्लैंड गए तब हमने पैसा बनाया। जो कंपनीज की अब जो नाम आ रहे हैं वो 93 और 94 में कंपनीज ली हुई हैं। फिर वही मेफेयर की अपार्टमेंट अल तौफीक का केस हुआ था, जो हुदैबा पेपर मिल का केस है, वो लंदन में एक हाई कोर्ट का जज इनके मेफेयर के फ्लैट, इन्होंने कर्जा देना होता है अल तौफीक को, वो इनके फ्लैट अटैच कर देता है मेफेयर के, जबकि एकदम फिर मियां साहब को कोई पता नहीं कोई दोस्त निकला जिसने को 3 अरब रुपया दे दिया इनको, $30 मिलियन, वो जो कर्जा जो देना था इन्होंने अल तौफीक बैंक को। ये 98 की बात है। उसके बाद फिर एक और इनकी प्रॉपर्टी की एक डिटेल्स आती हैं मेफेयर की कि ये इनके नाम की हैं, और हुसैन शरीफ कहते हैं कि ये सारा कुछ बाद में मैंने जाके मेरे दोस्तों ने कर्जा दी और ये मैंने सारी प्रॉपर्टी बनाई। इसमें सब में कॉन्ट्रडिक्शन है, और कॉन्ट्रडिक्शन होनी है क्योंकि ये फंस गए हैं। इनसे समझाया ही नहीं जा रहा कि ये पैसा किधर से आया। देखें, प्रॉपर्टी अगर मैंने बनानी है तो मुझे पहले पैसा चाहिए, पैसा होगा तो मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा ना। असल बात ये वो पैसा गया कैसे इंग्लैंड, और उसमें आपके पास इसहाक डार का एफिडेविट है। इसहाक डार एफिडेविट में कहते हैं कि मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नाम भी देते हैं उन लोगों के। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती क्योंकि मियां साहब को जनरल मुशर्रफ NRO दे देते हैं सऊदी अरेबिया जाने का, वो इन्वेस्टिगेशन वहां रुक जाती है। जो इसहाक डार का एफिडेविट है, अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट करें तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहां से पैसा गया कैसे, और फिर उस पैसे से ये प्रॉपर्टीज ली कैसी गई। और वो जो प्रॉपर्टीज हैं अब, वो आप याद रखें कि अभी तक ये सिर्फ एक लॉ फर्म, एक कंपनी है जिसके नीचे ये प्रॉपर्टीज हैं। बाकी इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं इसका भी अभी इंकशाफ नहीं हुआ। मैं आज डिमांड करता हूं, अगर फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अगर न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, आइसलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, न्यूजीलैंड में इन्वेस्टिगेशन शुरू है, क्यों नहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही? नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि इनके बच्चों के पास ये पैसा किधर से आया। मनी ट्रेल होती है, बड़े आराम से बता सकते हैं कि यहां से पैसा बाहर गया, क्या उस पैसे को आपने डिक्लेयर किया, क्या उस पैसे के ऊपर आपने टैक्स दिया, क्या आपने अपने असासे डिक्लेयर किए इलेक्शन कमीशन को। आपके लिए ये सारा वहां पैनामा के अंदर वहां उन्होंने टैक्स हेवन बनाया हुआ है, तो उधर ये दुनिया की एलीट, ये पाकिस्तान की नहीं है, ये दुनिया की एलीट वो पैसे अपने जमा करवाती है। अब इसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं।
اور میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں آسٹریلیا کے اندر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے جدھر ان کے نام آئے ہیں. ہانگ کانگ میں شروع ہو گئی ہے جن لوگوں کے ہانگ کانگ کی ایلیٹ کے نام آئے ہیں. نیوزی لینڈ میں ٹیکس ایجنسیز نے شروع کر دیا ہے. فرینچ جو پریزیڈنٹ ہے اس نے آرڈر کر دیا انویسٹیگیشن جو ادھر کے فرانس کے نام آئے ہیں. اور جو آئس لینڈ ہے اس کا جو ابھی وزیر اعظم کا نام آ رہا ہے وہاں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی ریزگنیشن اور وہاں ری الیکشن کی طرف جا رہا ہے. تو یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ کہیں گے نا کہ جی فلانی سازش ہے تو سیاسی ہے, یہ کوئی سازش نہیں ہے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں غریب قوموں پہ, وہاں کا پیسہ چوری کر کے باہر آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے, اللہ کی طرف سے پکڑے گئے ہیں. یہ میں کب سے اب تقریباً 20 سال ہو گئے میں یہ شور مچا رہا تھا کہ جو پیسہ چوری کر کے ملک کا باہر لیا جاتا ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, وہ اللہ حق ہے, اس نے سب کے سامنے اصلیت لے آیا. آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اور یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک فرم ہے اور جو اثاثے ہیں ان کے وہ اور فرمز کے نیچے ہیں. یہ ایک فرم, ایک لا فرم, اس کے صرف انکشافات ہوئے ہیں. تو اس کے اندر اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میاں نواز شریف کے اوپر جو الزامات آ رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ چیزیں کر دی. اپنا انہوں نے کہا کہ جی میں تو کچھ نہیں, میں تو بچوں سے قرضے لے کے گزارے کر رہا ہوں. یہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میں اپنے بچے وہاں کماتے ہیں پیسے اور وہ مجھے بھیجتے ہیں, میں تو مقروض ہوں, میں تو میری تو گاڑی بھی میرے نام کے نہیں ہے, گھر بھی میری والدہ کے نام ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے پتہ کیا چلا ہے کہ میاں صاحب نے اپنے بچوں کے نام تو چیزیں کر دی, لیکن بچوں بیچاروں وہ اب ان بیچاروں کو جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں بتانے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے اب ذرا پہلے جھوٹ سنیں کہ مریم بی بی سٹیٹمنٹ دیتی ہیں, ان کی ٹی وی کے اوپر چل رہی ہے باقاعدہ. انہوں نے کہا میرا تو ہمارے پاس تو نہ میرے بھائیوں کے نہ میرے خاندان کسی کی پراپرٹی باہر نہیں پڑی یا پیسے باہر نہیں پڑے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم, میں حالانکہ اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ ان کے میاں صاحب کے بیٹوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے اور بینک اکاؤنٹس باہر پڑے ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم حسین شریف آتے ٹی وی پر کہتے ہیں کہ میری یہ کمپنی ہے اور الحمدللہ میرے پاس وہ بھی ہے, وہ فلیٹ بھی ہے اور مے فیئر بھی ہے. وہ سارا ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہیں. ہم بڑے حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہوا ہے. اب رات جب ہم انڈین ایکسپریس کا مضمون پڑھتے ہیں تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کیا. انڈین ایکسپریس کے پاس انفارمیشن آتا ہے 3 آف شور کمپنیز کا, وہ ان کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کمپنیز آپ کے نام پہ ہیں یا نہیں. حسین شریف کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا میاں صاحب, اگر آپ اس ملک میں لوگوں سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی کرپشن ختم کریں, جو یہ نیب کہہ رہی ہے کہ دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے. یہ موجودہ نیب کی سٹیٹمنٹ ہے, دن کی کرپشن 12 ارب روپیہ ہے. یہ کرپشن کب روکے, کیسے روک سکتی ہے جب ملک کا پرائم منسٹر نہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے, نہ اپنے بچوں کے اثاثے ڈکلیئر کرتا ہے, نہ الیکشن کمیشن کو صحیح طرح بتاتا ہے کہ اس کے اور اس کے بچوں کے اثاثے کتنے ہیں. مریم بی بی کے ہسبینڈ ہیں MNA, انہوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے اثاثے مریم کے جو آگے ہے اس میں کہ 2 آف شور کمپنیز کے وہ بینیفیشری اونر ہے, وہ انہوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیا. صفدر بھی پھنستے ہیں, نواز شریف بھی پھنستے ہیں, وہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ان کے بچوں کے پاس کیپٹل کدھر سے گیا. اس لیے یہ اب پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کی قوم ڈیمانڈ کرے کہ جس ملک کے سربراہ اپنا پیسہ اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جاتے ہیں, وہ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے پیسہ پاکستان میں لے کے اور انویسٹمنٹ کرو. جس ملک کے سربراہ خود اپنے ایسٹس چھپاتے ہیں, وہ دوسروں کے ایسٹس کیسے کہہ سکتے ہیں ڈکلیئر کرو. صرف پچھلے 3 سال میں دبئی میں 750 ارب روپے کی پراپرٹی پاکستانیوں نے لی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو 7.5 ارب ڈالر اس ملک سے گیا صرف دبئی, جو باقی دنیا میں گیا وہ نہیں ہمیں پتا.
یہ جب پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم قرضے لیتے ہیں. یہ ملک مقروض ہوتا جا رہا ہے. یہی دونوں کے دور میں نواز شریف اور آصف زرداری کے دور میں 8.5 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ ہر پاکستانی کے اوپر 35,000 روپیہ تھا. آج 1,20,000 روپیہ قرضہ ملک کو مقروض کیے جا رہے ہیں. یہاں سے پیسہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھجوا رہے ہیں. منی لانڈرنگ میں خود ملوث ہیں. باہر ان کے بچوں کی اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. ڈکلیئر یہ نہیں کر رہے. یہ قانون کے اوپر ہے. کیسے یہ لوگوں کو کا احتساب کر سکتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرو؟ کیسے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کے کمیشن کے سامنے اپنے اثاثے صحیح ڈکلیئر کرو جب انہوں نے خود نہیں کیے؟ آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں نیب کو کہ اگر نیب اس ملک کے اندر اگر نیب اپنی ساکھ رکھنا چاہتی ہے, اپنی کریڈیبلٹی بچانا چاہتی ہے, فوری طور پہ انویسٹیگیشن شروع کریں جو باقی دنیا کے ملکوں میں ہو چکی ہے. جن لوگوں کے نام آئے وہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. نیب کا اب کام ہے کہ انویسٹیگیشن شروع کے نواز شریف فیملی کے اوپر پوری. اور یہ پھر سے میں کہتا ہوں یہ صرف ایک لا فرم کے نیچے ہے. یہ باقی ان کی پراپرٹیز وہ جو اور کمپنیز کے نیچے اس کے اوپر ابھی نہیں کوئی انکشاف ہوا ہے. اسی جو ابھی تک انکشاف ہوا ہے نیب کا اب کام ہے کہ آگے چلے. اگر نیب نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لینا اس کا مطلب نیب کو بند کر دیا جائے, کیونکہ عام چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نہ پکڑیں پلی بارگن کے لیے, غریب لوگوں کو پکڑیں, کوئی عام پکڑ پٹواری کو پکڑ لیا اور اس سے بھی پلی بارگن کر کے خود بھی پیسہ بنا رہے ہیں. جو اگر آپ نے اس ملک میں کرپشن ختم کرنی ہے سب سے پہلے بڑوں کو پکڑیں. ان جتنے بھی اوپر ہمارے صاحب اقتدار ہیں جو کہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں, یہ ٹائم ہے پاکستان میں جو میں 20 سالوں سے کہہ رہا تھا, یہ ٹائم ہے ان کا احتساب کرنے کا. دیکھیں میں نون لیگ کے وہ لوگ جن کو پاکستان کی فکر ہے, میں نون لیگ کے ان لوگوں کو جن کو پاکستان کی فکر ہے ان کو اپیل کرتا ہوں. آج دیکھیں یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, یہ عمران خان کا سوال نہیں ہے, یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے. اگر اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر جاتا جائے گا جس ریٹ پہ جا رہا ہے اور قرضے پہ قرضے لیتے جائیں گے, ملک کے اوپر قرضے چڑھاتے جائیں گے, آپ کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ کتنے آپ کے بچے جا کے باہر رہ سکیں گے جس طرح حسین شریف اور حسن شریف رہ رہے ہیں؟ کتنے لوگ جا کے, آپ نے تو رہنا یہاں ہے, ملک ہمارا بربادی کی طرف جا رہا ہے. ہاں ایک نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے, نہ پیسہ ہے ہسپتالوں کے لیے, نہ ہمارا پیسہ ہے انصاف لوگوں کو دینے کے لیے, کیونکہ سارا جو ملک میں نہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے کیونکہ ٹیکس کی چوری ہے اور کرپشن کا پیسہ جا رہا ہے. جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے میٹرو کے پروجیکٹس اور یہ اورنج ٹرین بن رہی ہے, پتہ چلوا ان میں سے کتنا پیسہ باہر جا رہا ہے. یہ جو باہر آف شور کمپنیز میں پیسہ جا رہا ہے وہ یہ بڑے پروجیکٹس میں سے تو پیسہ چوری ہو کے باہر جا رہا ہے. اگر ایک منٹ اگر ہمارے نون لیگ کے جو وہ لوگ جن کو فکر ہے پاکستان کی, کیا آپ کا نہیں کام کہ نواز شریف سے پوچھیں کہ یہ کیسے آپ کے بچوں کے پاس اربوں روپیہ آیا ہے؟ میں آج اپنی طرف سے کہتا ہوں, میں تحریک انصاف کا چیئرمین ہوں, میں نے اپنے سارے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں, میری ویب سائٹ کے اوپر ہیں, سارے میرے نام پہ ہیں, سارے پاکستان میں ہیں. میری پارٹی میں سے کوئی بھی میرے سے پوچھ سکتا ہے, کوئی میرا پارٹی کا ممبر کارکن پوچھ سکتا ہے کہ عمران خان بتائیں آپ کے پیسے کتنے ہیں, آپ کے اثاثے کتنے ہیں. کیا نون لیگ والے نہیں پوچھ سکتے؟ کیا یہ کوئی خدا ہے؟ کیا یہ کوئی مغل اعظم ہے کہ آپ پوچھ نہیں سکتے ان سے کہ آپ کے بچوں کے پیسے باہر کیسے پڑے ہیں؟ یہ جو پرویز رشید جیسے لوگ ہیں, درباری ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. ایک منٹ سنو, ان کو شرم آنی چاہیے کہ بجائے اس سے پوچھے نواز شریف سے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں یہ لوگوں کے آنکھوں کے اندر دھول پھینک رہے ہیں. جی صاحب, آج صبح جو حکومتی ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ کے تمام الزامات کو انہوں نے مسترد کیا ہے اور بلکہ یہاں تک بھی کہا ہے جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ بھی چیلنج ہے بتائیں. تو یہ جو ہے یہ محض ایک نوک جھونک ہے دونوں کے درمیان یا کوئی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ ہے؟ ایک منٹ, پہلے تو یہ الزام عمران خان نے نہیں لگائے, یہ انٹرنیشنل ساری دنیا میں انکشافات ہوئے ہیں جس میں میاں صاحب پھنس گئے ہیں. یہ عمران خان نے نہیں الزام لگائے,
یہ उनसे पूछना चाहिए जो लॉ फर्म के जरिए इन्होंने बाहर पैसे पैनामा पे रखवाए हुए हैं, उनसे पूछे। मैंने तो नहीं इल्जाम लगाया, लेकिन मैं इनसे ये पूछता हूं कि अगर ये कहते हैं कि मेरा पैसा ठीक नहीं या मैंने कोई 2 नंबरी से ये जगह ली है, मुझे पकड़ते क्यों नहीं है? मैं इनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मेरी बारी आएगी, मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं इल्जामात नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जेलों में डलवाऊंगा। मैं एक मिनट सुने, मैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा उसको मैं जेल में डालूंगा। मैं खड़ा हूं आपके सामने, बताएं कि अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई गलत किया तो मुझे पकड़ो, क्यों नहीं पकड़ते मुझे? इमरान खान साहब, आप जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं, आपने स्टार्ट में जिन मुल्कों का नाम लिया है, वहाँ किसी न किसी हद तक इमरान खान चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे रिपोर्ट को लीक किया गया, जिस तरीके से इस सारे सिलसिले को हैंडल किया गया, क्योंकि पिछले 4 दिन से ये बातें इतनी चल रही थी और बातें इतनी गर्म थी कि किसी ने भी आके इस पे कोई बात करने की ज़हमत ना की और इस पे कुछ भी आगे बात ना कर सके। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा सब एक्स क्रिकेटर से भी और सब लोगों से कि मेरी जो सर्विसेज पाकिस्तान के लिए हैं और या मेरी एज अ कोच एज अ प्लेयर उसको ना भुलाया जाए, क्योंकि मैंने अपने बड़ी ईमानदारी से 19 महीने ये काम किया है, पहले भी मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, तो उसको हरगिज़ ना भुलाया जाए। और कोशिश करूँगा आइंदा भी कि पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ। मेरी रिकमेंडेशंस आप सबको मालूम है, मैंने दी हैं, आपको अब तो वो एयर हो गई हैं लीक होने के बाद, सबको मालूम है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि उसमें रिकमेंडेशंस में मैंने क्या क्या लिखा था। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में आने वाले कोचेज़ जो पाकिस्तान को आइंदा कोच करेंगे उनको और आसानियाँ होंगी उससे, अगर उन तजावीज़ पे उन पे अमल किया गया। बड़े हैवी दिल के साथ छोड़ रहा हूँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि तकलीफ़ ज़रूर हुई है मुझे, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की डीलिंग होगी, लेकिन क्या करें, शायद हमारे हालात ही कुछ ऐसे हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड के हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना था, लेकिन उससे बेहतर है कि बंदा खुद ही इज़्ज़त से छोड़ जाए। मैंने अपनी सारी बातें 2-3 पिछले टीवी चैनल्स पर भी बैठ के भी की हैं और उसमें मैंने कोई झूठ नहीं बोला। और मैं और अपने उन प्लेयर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो टीवी पे बैठते हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, कि इस क्रिकेट का हमेशा ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा अवेलेबल हूं क्रिकेट बोर्ड के लिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा उन क्रिकेटर्स का कि पिछले जो 19 महीने में जिनके साथ मैंने काम किया, मैंने अपनी पूरे दिल से उनके साथ काम किया, कोशिश की कि उनको बेहतर क्रिकेटर बनाऊं, उनके साथ मिल के चलूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो हालात इस वक्त बन गए हैं, इसमें मुल्क की बदनामी, इसमें क्रिकेट बोर्ड की बदनामी। क्रिकेट बोर्ड मेरा घर है, अगर इसकी बदनामी होगी या मेरे घर की बदनामी होगी तो उससे बेहतर है कि हम इससे पीछे हट जाएं और इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें इन चीज़ों को। मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अभी बाकी है, ग़ालिबन 50-60 लाख रुपए जितना भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड को कि वो 50-60 लाख रुपया जो भी मेरा बचता है वो अब हमारी जो फर्स्ट क्लास इस सीज़न या अगला आने वाला सीज़न उसके ऊपर खर्च करे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब ऊपर क्रिकेटर या ऊपर बच्चा आता है तो वो उतना तैयार नहीं होता जो कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में होना चाहिए। आई एम फॉर द डोमेस्टिक क्रिकेट, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर अच्छी नहीं होगी, अगर उसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, उसमें पैसे नहीं डाले जाएंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद या 8 साल बाद यहाँ कोई और खड़ा होगा और वो यही रो रहा होगा। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को इस पे बहुत सोचना चाहिए